Welcome back, students. So, we were discussing the non scientific production of knowledge, and in that, we discussed how common sense and observation can actually deceive us and make us generate knowledge which is not scientifically plausible. Well, it may be right, but it may not be. So, now we'll quickly study some other ways in which non scientific knowledge is produced, and we'll see what can be wrong with it and how it would not count as scientific knowledge. So the first is, or second after common sense, is experts and authority. Well, most of what we know probably comes from our parents, teachers, and experts, or from books, from movies, from television, from internet, and other media. Most of the times we accept something as true because someone with a lot of knowledge on that subject said that, and we trust him or her. This is like using authority as the basis of knowledge, and there's actually nothing wrong with it. In many ways, you should rely on experts. Like when you're going to a doctor, there's no reason not to rely on him. You cannot actually conduct research on each and every disease because they spend a lot of time on their job. They learn their trade for years, and then they become experts. But relying on experts has its own limitations, and it is easy to overestimate someone's expertise. Sometimes people speak on fields about which they know very little, and you see that in media every day. You see one single person who is an expert on finance, and the same person in the next program or the program on the second day he becomes an expert on foreign affairs, and on the third day he's talking medicine and stuff like that. It is an everyday affair on our media. So you should really take the opinion of such experts with a pinch of salt. But who decides whether someone is a genuine expert or not? I mean, there are think tanks which are real, and there are think tanks which are kind of pseudo think tanks. So, more than finding an expert, for a student like you, for a scholarly person, it is important to think independently and evaluate research on our own. Always relying on experts and authorities is not considered a good practice when we talk about the principles of a free and democratic society. Experts might promote ideas that strengthen their own power and position. Well, whether they're experts or not in the first place is also questionable. So, uh, with such a lot of media around us, these things happening, we lose our ability to decide for ourselves if we follow only these kind of experts. And even if they are genuine experts, how would we develop ourselves if we keep relying on them? So the idea is to learn about research and acquire the skills so we can evaluate the strong from weak studies and perhaps add to them through our own research. The second or the third problem uh, uh, under the non scientific production of knowledge is ideological beliefs and values. Now, what is ideological beliefs and values? We sometimes form tribes and groups. For example, mm, you think yourself to be belonging to a particular religion, to a particular country, to a particular area in a country, and then you kind of think that that is the best way to do things, the way you or your group is doing those things. जैसे आपने सुना होगा कि बहुत अरसा तक हिंदुस्तान में, यानी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान एक थे, तो हमारे मौलाना साहिबान कहते थे कि रेल में बैठना हराम है. And it went on for like decades. फिर आपने सुना होगा कि यही लोग कहते थे कि लाउड स्पीकर हराम है. आप इसके ज़रिए कोई भी बात आवाज़ अपनी बढ़ाएंगे तो ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है. और बहुत अरसे तक लोग इसको भी ठीक समझते रहे. वो फिर कहीं पे मैंने पढ़ा कि पहले
लाउड स्पीकर को मस्जिद में डालना नामुमकिन था, अब लाउड स्पीकर को मस्जिद से निकालना नामुमकिन हो गया। अब सबसे बड़ा टूल ही मस्जिद का लाउड स्पीकर बन गया है। तो चीज़ें इस तरह चेंज होती रहती हैं, और क्या वो ठीक था या ये ठीक है, आई डोंट नो। ये हो सकता है कल को हमें दोबारा पता लगे कि नहीं, लाउड स्पीकर वाकई बहुत बुरी चीज़ है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे आइडियोलॉजी और बिलीव्स और वैल्यू सिस्टम्स के अंदर होती हैं, और हम उनको ठीक समझते हैं, हम उनको प्योरली कंसिस्टेंट विद लॉजिक एंड साइंस समझते हैं, जबकि वो होते नहीं हैं। चौथी चीज़ है मीडिया या पॉपुलर मैसेजेस। अब मीडिया, आपको पता है कि ये कॉमन सेंस, पर्सनल एक्सपीरियंस, इसके अलावा हमारी बहुत सारी नॉलेज जो है वो मीडिया से आती है। दिस में नॉट बी अगेन अ बैड आइडिया, मीडिया में बड़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन मीडिया कभी कभी आपको फोकस कर देता है ऐसी चीज़ों पे जो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, और जनरली फिर आप किताबों से और फॉर्मल नॉलेज हासिल करने से दूर होते जाते हैं। आपको लगता है कि मैंने जो 8 बजे प्रोग्राम में देख लिया था, बस अब काफ़ी नॉलेज मिल गई है मुझे, और मैं ज्योग्राफी को भी जान गया हूँ, तो मेडिसिन को भी जान गया हूँ, और बाकी सब चीज़ें भी जान गया हूँ। हालांकि रियलिटी ये है कि आप अगर देखें बड़ी अच्छी अच्छी डेवलप्ड सोसाइटीज़ में, तो उनकी नॉलेज, जैसे अमेरिका को ले लें, तो 2006 में एक सर्वे हुआ था। जिस 2006 वो टाइम है जब अमेरिका 3 साल से इराक वॉर में इन्वॉल्व था। तो उन्होंने यंग ग्रेजुएट से, स्टूडेंट से पूछा कि मैप पे बताएं हमें इराक किधर है, तो आधे से ज़्यादा नहीं बता सके कि इराक किधर है। हालांकि वो उनसे जब आप पूछते थे इराक वॉर और अमेरिका की वॉर के बारे में, तो बड़े पैशनेटली वो बताते थे कि कैसे ज़रूरी है ये वॉर, या कैसे ये गलत है ये वॉर, लेकिन उनको आइडिया ही नहीं था कि इराक क्या चीज़ है, किधर है। तो इस तरह भी हमारी बहुत सारी सूडो नॉलेज हमारे ऊपर मीडिया बना देता है, जो कि असल में सही होती है या नहीं उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। Similarly, we may hear a terrible, terrible problem in the media, but with closer inspection and a little research, we may learn that it was seriously overrated. अभी जो एक हफ्ता पहले साहिवाल में इंसिडेंट हुआ, उस पर अगर आप गौर करें तो पहले दिन देखें किसी और सेंटिमेंट के साथ हमें मीडिया बता रहा था कि दहशतगर्दों की गाड़ी को रोका और उनको मार दिया, निकाल के बच्चों को छोड़ दिया। फिर तकरीबन 3-4 घंटे में पता चला नहीं, उनमें से 2 दहशतगर्द नहीं थे, तो मीडिया ने बिल्कुल सब कुछ चेंज कर दिया और तीसरे को भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया, जिसका 2 दिन बाद पता चला कि वो एक्चुअली दहशतगर्द था। तो बेसिकली ये जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज होते हैं, ये रिसर्च नहीं करते हैं, पूरा डेटा समझते नहीं हैं, पूरा कॉन्टेक्स्ट समझते नहीं हैं, और आपको बताना शुरू कर देते हैं। अब आपकी किस्मत है कि आपने किस पॉइंट पे उनको सुना। पहले दिन सुनते तो कोई और नॉलेज होती आपकी, दूसरे दिन सुनते तो कोई और नॉलेज होती, तीसरे दिन सुनते तो कोई और होती, और शायद आप उस बंदे को बेवकूफ़ समझ रहे होते जिसने दूसरे दिन सुना था, और जिसने तीसरे दिन सुना था वो आपको बेवकूफ़ समझ रहा होता। तो उस वक्त तक अपना ओपिनियन एक पढ़े लिखे बंदे को नहीं बनाना चाहिए जब तक वो किसी भी इशू पे एक एक अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेटा को देख चुका हो, उसकी एनालिसिस देख चुका हो, और ये जान चुका हो कि एक साइंटिफिक तरीके से एनालाइज किया गया था, वरना हमेशा गलत ओपिनियन ही बनेगा। आगे चलते हैं जी। अब ये जो सारा साइंटिफिक प्रोसेस है या ये रिसर्च है, इसकी तरफ दुनिया कैसे आई, जल्दी से इस चीज़ को डिस्कस करते हैं और फिर आगे चलते हैं। अ, तकरीबन ये 17वीं और 18वीं सदी की बात है कि जब डार्क एजेस, द सो कॉल्ड डार्क एजेस ख़त्म हुई, जब जब यूरोप और जो कह लें कि जो नॉन इस्लामिक वर्ल्ड थी, वो आहिस्ता आहिस्ता जब उनके बुरा वक्त ख़त्म हुआ और उन्होंने तरक्की करनी शुरू की, तो उसको वो लोग कहते थे एनलाइटनमेंट, यानी द टाइम आफ्टर डार्क एजेस। इसमें इसके जो पार्टिसिपेंट्स थे द एनलाइटनमेंट मूवमेंट के, ये कहते थे कि दे आर इल्यूमिनेटिंग ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड कल्चर आफ्टर द डार्क मिडल एजेस। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चला, और फिर तकरीबन 1760, 50-60 से लेके तो 1850 तक या 1840 तक एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई। ये एक ट्रांजिशन थी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस और इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जिसने मूव किया बेसिकली यूरोप को, और किसी हद तक अमेरिका को भी।
और बेसिकली स्टार्ट यूके में हुई थी, लेकिन और यूके ही इसका बड़ा प्लेयर रहा, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वर्ल्ड वॉर वन के बाद काफ़ी हद तक और वर्ल्ड वॉर टू के बाद तो टोटली अमेरिका में अमेरिका इसका सेंटर बन गया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान फिर एक और बहुत बड़ा माइलस्टोन था, द ग्रेट एग्जीबिशन। ये एक 6 महीने तक एक मेला लगा रहा था इंग्लैंड में, जो आजकल हाइड पार्क है लंदन में, उस जगह पे उस वक्त उसको क्रिस्टल पैलेस कहते थे। इस एग्जीबिशन को भी द क्रिस्टल पैलेस एग्जीबिशन भी कहते थे। तो इसमें दुनिया जहान की जितनी भी मशीनें और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट बनी थी उसको वहाँ पे डिस्प्ले किया गया। और वो ये हैरत की बात है कि ये तकरीबन तकरीबन आज से 1850-51 में हुई थी बेसिकली ये। तो कह लें कि 170 साल पहले हुई थी ये। लेकिन जो मशीनें बेसिक मशीनें वहाँ पे डिस्प्ले हो गई थी, उनके बाद बड़ी बड़ी बस दो ही चीज़ें ऐड हुई हैं। एक है कंप्यूटर, एक है गैस टरबाइन। और गैस टरबाइन को आप ज़रा पीछे रिवर्स कर लें तो कुछ इंजन की और टाइप्स भी हैं। इसके अलावा जितनी भी आजकल इंडस्ट्री देखते हैं वो किसी ना किसी शक्ल में 1851 में इस एग्जीबिशन में डिस्प्ले हो गई थी। अब ये थोड़ी सी जो वेस्ट के साइंसदान हैं इनको जब भी आप पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको लगता है कि डेलिबरेटली इस्लामिक रिसर्च को ऐसे बिहेव किया जा रहा है कि वो कभी हुई ही नहीं है। उनको किताबों से भी वाइप आउट कर दिया जाता है, उनके बारे में कहीं डिस्कशन भी नहीं होती हिस्ट्री में। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे अलजेब्रिक ज्योमेट्री जो है वो बैतुल हिकमा जो है वो जो ग्रेट अब्बासियों की जो बहुत बड़ी हुकूमत थी टर्की में, उन्होंने एक नॉलेज सिटी बनाया था जो प्रेजेंट डे इराक में तकरीबन बनता है। और उसका एक वर्जन इस्तंबुल उस वक्त में जो इस्तंबुल का जो भी नाम था उस वक्त, प्रॉब्ली उसको कहते थे, मेरे जहन से निकल गया, बहरहाल उसका पुराना नाम था, उसमें भी उसका एक वर्जन था। तो ये जो बैतुल हिकमा था या हाउस ऑफ विजडम था, इसने ज़बरदस्त रिसर्च की थी अलजबरा पे, ज्योमेट्री पे, बहुत और भी मेडिसिन पे, बहुत सारे एरियाज़ में रिसर्च की। तो अभी भी पायनियर है उन एरियाज़ में, लेकिन उसको बिल्कुल गायब कर देते हैं। इसी तरह अब इब्न हैतम जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑप्टिक्स पे, ये लेंसेज वगैरह पे उन्होंने दुनिया में शुरू ही उन्होंने की, लेकिन कहीं उनका नाम नज़र नहीं आता। इसी तरह आप मेडिसिन में देखें तो बहुत बड़े बड़े नाम, अल राज़ी वगैरह, लेकिन कोई ज़िक्र नहीं है उनका। इसी तरह आप कहीं पे भी पढ़ें या किसी से पूछें तो पहला एयरक्राफ्ट किसने बनाया जी? राइट ब्रदर्स ने बनाया। यस ठीक है, उन्होंने पहला वो पावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया। वो अपनी लाइफ में शायद कभी उसको 8 मिनट से ज़्यादा उड़ा भी नहीं सके, लेकिन वो उन्हीं को एट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन आप देखें तो ये सुल्तान अहमद के दौर में टर्की में एक सलीबी नामी एक हज़ारफंद अहमद सलीबी नामी एक पायलट थे। उन्होंने अनपावर्ड एयरक्राफ्ट बनाया था और उस पे शायद वो आधे घंटे से ज़्यादा फ़्लाइट करते रहे थे। और ये 1630 की बात है, यानी कि राइट ब्रदर्स से कुछ 300 साल 250 साल पहले की बात है। लेकिन इस तरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें डेलिबरेटली लगता है कि कहीं से वाइप आउट हो गई हैं इस सारे प्रोसेस में, साइंस तक पहुँचते पहुँचते। लेकिन खैर शायद ऐसा ही होता है, जो नेशन किसी एक वक्त पे ऊपर होती है वो उसको लगता है कि मैं हमेशा से ही ऊपर था। तो प्रॉब्ली जब कोई और चेंज आएगी तो जो अगली नेशन ऊपर आएगी वो ऐसे करेगी। लेकिन उस वक्त तक भी, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक भी, बल्कि मैं कहूँगा कि पिछली सदी के शुरू तक भी, ये साइंटिफिक अप्रोच जिसको हम कहते हैं वो बहुत क्लियरली सामने नहीं आई थी। अब साइंस या साइंटिफिक अप्रोच क्या चीज़ है कि आप एक, जिसको हमने शुरू में डिस्कस किया था, कि आप एक सिस्टमेटिक तरीके से किसी सवाल को अप्रोच करें और एक लॉजिकली कंसिस्टेंट, एक्सेप्टेबल टू द साइंटिफिक कम्युनिटी एक तरीका निकालें जिससे उसका जवाब आपको मिले और आप प्रूव कर सकें और लोग भी मान जाएं कि हाँ ये ठीक तरीके से जवाब निकला है और रिलायबल जवाब है। इसमें हमने डिस्कस किया था शुरू में कि नेचुरल साइंस और सोशल साइंस में फ़र्क होता है। नेचुरल साइंसेस जो होती हैं वो फिज़िक्स कह लें, केमिस्ट्री कह लें, किसी हद तक मेडिसिन भी कह लें, और जो भी हमारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड साइंसेस होती हैं वो सारी नेचुरल साइंसेस के अंडर आती हैं। और दूसरी सोशल साइंस होती है।
सोशल साइंस जो है वो बेसिकली जिसमें आप एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन जोग्राफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी इनको ले ले सकते हैं। एंड दे इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ह्यूमन social cultural life, the beliefs, the behaviors, the relationships, interactions, institutions, and so on. Just as we apply knowledge from the physical and biological science in related, more pragmatic fields, we apply social science knowledge to practical concerns in related fields. और ये fields क्या हैं? जैसे काउंसलिंग में करते हैं हम लोग, क्रिमिनल जस्टिस में करते हैं, एजुकेशन में, मैनेजमेंट में, मार्केटिंग में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, पब्लिक हेल्थ में, सोशल वर्क में, अर्बन प्लानिंग में। इन सब में आप ह्यूमंस का बिहेवियर स्टडी करते हैं। नंबर्स नहीं मिलते आपको कि ये मैंने 4 दरख्त लगाए तो उनमें से 4 पे फल लगे या 3 पे लगे, नहीं, उनमें आप बिहेवियर्स देख रहे होते हैं लोगों के। तो ये साइंसेस बेसिकली 2 डिफरेंट अप्रोचेस हैं साइंस की तरफ। कुछ लोग कभी कभी सोशल साइंस को सॉफ्ट साइंस भी कहते हैं। इस वजह से सॉफ्ट साइंस नहीं कहते कि इसमें कोई डिटेल नहीं होती, बट इट इज़ हाईली फ्लूइड, इट इज़ वेरी फॉर्मिडेबल टू ऑब्जर्व एंड डिफ़िकल्ट टू मेजर। तो इस वजह से इसको कभी कभी हम सॉफ्ट साइंस भी कहते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं जो जो आपको पता होनी चाहिए जब आप साइंस का जब भी नाम लेते हैं। तो ये 3 जो आपको स्क्रीन पे राइट साइड पे नीचे नज़र आ रही हैं। थ्योरी किस चीज़ को कहते हैं? अगर डेफिनेशन देखें तो इट्स अ सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड आइडियाज़ दैट कंडेंस एंड ऑर्गेनाइज द नॉलेज अबाउट द सोशल वर्ल्ड एंड एक्सप्लेन्स हाउ इट वर्क्स। अगर आम ज़ुबान में बात करें तो कह लें कि ये कुछ आइडियल है कि चीज़ों को होना कैसे चाहिए। यानी जब एक बंदा काम पे आता है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं उसके काम के अच्छा होने या ना होने में। ठीक, तो ये हो गई थ्योरी कि एक्चुअली क्या चल रहा है उन चीज़ों के पीछे जो हम रोज़ ऑब्ज़र्व करते हैं। अब डेटा क्या चीज़ है? डेटा जो है वो न्यूमेरिकल या नॉन न्यूमेरिकल हो सकता है, और बेसिकली ये एविडेंस हो आप गैदर करते हैं कभी नंबर्स की शक्ल में, कभी बग़ैर नंबर्स के, और इनको आप फिर केयरफुली गैदर करके ऑर्गेनाइज करके प्रेजेंट करते हैं। ये नंबर्स भी हो सकते हैं और नंबर्स के बगैर भी डेटा हो सकता है। जैसे आप बता सकते हैं कि मैं एक दफ़्तर में गया तो वहाँ पे 16 में से 12 लोग इस मशीन पे काम कर रहे थे, ये नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप बताएंगे कि मैंने देखा कि जो लोग काम कर रहे थे वो जब लाइट ज़्यादा होती थी तो एफिशिएंटली करते थे, लाइट नहीं होती थी तो कम एफिशिएंटली करते थे, ये बगैर नंबर्स के है। लेकिन दोनों डेटा हैं और दोनों वर्केबल यूजेबल डेटा हैं जिनसे आगे कोई प्रैक्टिकल आउटकम जनरेट हो सकती है। और ये आखिर में लिखा हुआ है एम्पिरिकल। हम एम्पिरिकल का वर्ड भी यूज़ करते रहते हैं। एम्पिरिकल क्या चीज़ है? एम्पिरिकल वो चीज़ होती है विच वी कैन ऑब्जर्व एंड एक्सपीरियंस डायरेक्टली थ्रू आवर सेंसेस, यानी ये टच, साइट, हियरिंग, स्मेल, टेस्ट, इनसे हम ऑब्जर्व कर सकें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसी टेक्निक्स यूज़ करें जो सेंस को एक्सटेंड कर देती हैं। जैसे आप हाथ लगा के किसी का टेम्परेचर सेंस कर सकते हैं कि उसको कितनी बुखार है, लेकिन और डिटेल में सेंस कर लेते हैं एक थर्मामीटर उसके बॉडी में, मुंह पे या बगल में रख के। तो इस चीज़ को हम कहते हैं ये एम्पिरिकल एविडेंस मिल गया हमें किसी सवाल के बारे में। अब कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं जिनको आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं। जैसे एक वर्ड है सूडो साइंस। सूडो का मतलब होता है नकली या जो चीज़ जेन्युइन नहीं होती है। तो सूडो साइंस का वर्ड आपको बहुत सी जगहों पे मिलेगा, और आपको अपने इर्द गिर्द भी बहुत सी सूडो साइंस जनरेट होती हुई नज़र आएगी। सूडो बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसको हम कहते, इसका मतलब होता है काउंटरफीट। We face a lot of pseudoscience every day through television, magazines, films, newspapers, और कभी कभी स्कॉलरली इवेंट्स यानी सेमिनार्स भी होते हैं जो सूडो साइंस को प्रमोट कर रहे होते हैं। कोई कंपनी है मेडिसिन की और वो ज़बरदस्ती सेमिनार करवाते हैं कि वो उनकी दवाई मशहूर हो जाए। तो अब एक स्कॉलर इस काबिल भी होना चाहिए कि वो डिस्टिंग्विश कर सके सूडो साइंस को एक आम साइंस से। कभी कभी जो सूडो साइंस जो लोग आपको बता रहे होते हैं वो खुद बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन प्रॉब्ली वो उस एरिया में नहीं पढ़े होते जो जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं।
फिर इस तरह आपको इस तरह के और वर्ड्स भी मिलेंगे, जंक साइंस और पॉप साइंस, इस तरह बहुत से वर्ड्स हैं। आइडिया ये है कि बग़ैर पूरी नॉलेज के या किसी गलत मकसद को ज़हन में रख के लोगों को एविडेंस बताया जाए। सिलेक्टेड एविडेंस होता है वो, जनरली रिप्रेजेंटेटिव एविडेंस नहीं होता है। फिर ये एक टर्म है साइंटिफिक कम्युनिटी। साइंटिफिक कम्युनिटी क्या है? ये कह लें कि एक अनऑर्गेनाइज्ड या कह लें कि लूज़ ग्रुप ऑफ पीपल है दुनिया में, जो कि समझते हैं कि साइंटिफिक मेथड क्या है। जैसे आप लोग हैं, जैसे कोई भी प्रोफेसर्स होते हैं जो रिसर्च करते हैं, और वो उन्होंने अपने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हुए हैं। अगेन वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे बैठ के इकट्ठे प्रिंसिपल बनाते हैं, लेकिन एक लॉजिकल सी बात उनको समझ आती है कि जब तक मुझे ये एविडेंस नहीं मिलेगा, मैं इस चीज़ को साइंटिफिक स्टडी नहीं समझूंगा। उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, अपने एथिक्स हैं, जिनको हम भी थोड़ी देर में देखेंगे। एक टर्म यूज़ होती है इन्यूमरेसी। क्या है इन्यूमरेसी? इट इज़ अ लैक ऑफ क्वांटिटेटिव लिटरेसी, यानी आपको स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा ना हो, आपके सामने नंबर्स चल रहे हों, लेकिन यू कैन नॉट मेक मच आउट ऑफ इट। इसको इन्यूमरेसी कहते हैं। और साइंटिफिक लिटरेसी क्या है? इट इज़ द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड साइंटिफिक नॉलेज, apply scientific concepts, principles, and theories, use scientific processes to solve problems and make decisions, and interact in a way that reflects core scientific values. तो साइंटिफिक लिटरेसी क्या हुई कि साइंस को समझना, उसके तरीके समझना, और उन्हीं के थ्रू नॉलेज जनरेट करना। और इन्यूमरेसी क्या हुआ कि आपको यू आर नॉट गुड विद नंबर्स। आगे चलते हैं जी। ये जो साइंटिफिक कम्युनिटी होती है, इसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। ये 5 आपके सामने स्लाइड पे लिखे हुए हैं, इनको एक एक करके देखते हैं क्या है। पहला है यूनिवर्सलिज्म। यूनिवर्सलिज्म का मतलब है कि हम ये नहीं देखेंगे कि रिसर्च कौन कंडक्ट कर रहा है, हम सिर्फ रिसर्च की क्वालिटी देखेंगे और रिज़ल्ट को उस पे जज करेंगे। अब ये कहने को तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली मैंने आपको थोड़ी देर पहले जब हम इस्लामिक रिसर्च पे बात कर रहे थे तो बताया कि ऐसा होता नहीं है। अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्च जो है उसको जर्नल्स एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी से मेरा मतलब कि जिनको उन्होंने ख़ुद बड़ा हाईली रैंक किया होता है। और आप किसी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी जो थर्ड वर्ल्ड में है, वो जितना मर्ज़ी बेचारा रिसर्च करता रहे, उसको वो नहीं मानते, पब्लिश भी नहीं करते। अब किसी हद तक आप शायद कहें कि ठीक भी कर रहे हैं इसमें, क्योंकि वाकई जो थर्ड वर्ल्ड में रिसर्च में एथिक्स का भी बहुत ख्याल नहीं रखा जाता और गलत डेटा भी जनरेट किया जाता है। लेकिन बहरहाल यूनिवर्सलिज्म जो है उसको ये चैलेंज एक है साइंस में। दूसरा प्रिंसिपल है ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म। ये क्या है? दैट साइंटिस्ट शुड नॉट एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़ और एविडेंस इन अ केयर फ्री अनक्रिटिकल मैनर। जब भी कोई नया एविडेंस आता है, उसको क्या कहते हैं, ठोक बजा के अच्छी तरह उसको चेक करें और छोटी से छोटी गलती उसकी निकालने की कोशिश करें ताकि वो प्रिस्टीन हो जाए और उसके अंदर कोई गड़बड़ ना रहे। फिर तीसरा है डिसइंटरेस्टेडनेस, यानी कि अ साइंटिस्ट मस्ट बी न्यूट्रल, इम्पार्शियल, रिसेप्टिव एंड ओपन टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशंस एंड न्यू आइडियाज़। यानी उसका अपना ज़ाती इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए किसी पर्टिकुलर आउटकम में। यानी ये ना हो कि नहीं, ये दवाई मैंने कामयाब करानी ही करानी है ताकि बाद में बेचूं, बल्कि अप्रोच ये होनी चाहिए कि देखूं ये दवाई ठीक है या नहीं है। और सेकेंडली उस वो जो है उसके अंदर बाइसेस भी नहीं होनी चाहिए। जो हमने शुरू में कुछ बाइसेस पढ़ी थी, हर इंसान में बाइसेस होती हैं, लेकिन उनको समझ के ओवरकम करना भी हर इंसान की कैपेबिलिटी में शामिल है। तो साइंटिस्ट जो हैं वो एक हम लोग जब कोई पेपर पब्लिश करते हैं तो हम टोटली रेडी रहते हैं इस बात पे कि कल को कोई हमारे पेपर को रेफ़र करके कहेगा इन्होंने ये फाइंडिंग निकाली थी लेकिन ये गलत है। हमारी आगे अप्रोच क्या होती है कि हम उसका पेपर पढ़ लेते हैं और उसको देखते हैं कि अगर उसमें कोई मज़ीद इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है या कमी थी, उसको पॉइंट आउट कर देते हैं। तो इसी प्रोसेस से फिर साइंस आगे बढ़ती है। फिर है जी चौथा, कम्युनलिज्म। यानी कि साइंटिफिक नॉलेज मस्ट बी शेयर्ड विद अदर्स, इट बिलोंग्स टू एवरीवन। अब ये भी कहने को बड़ा अच्छा आइडियल है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें ऐसा होता नहीं है। आप अच्छे जर्नल पे पेपर देखें तो आपको कहता है कि पूरा पेपर के लिए मुझे पहले $35 दो, तो कम्युनलिज्म वहाँ पे डैमेज हो जाता है। लेकिन बहरहाल ये एक
एक प्रिंसिपल है और जितना इसको कोई अपहोल्ड हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और आखिर में ऑनेस्टी। ऑनेस्टी एसेंशियली कोई साइंटिफिक कम्युनिटी का नॉर्म नहीं है, लेकिन ये एक जनरल सा कल्चरल नॉर्म है, बट इट इज़ स्पेशली स्ट्रॉन्ग इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में जो लोग इन्वॉल्व हैं डिमांड ऑनेस्टी इन ऑल रिसर्च। डिसऑनेस्टी और चीटिंग इन साइंटिफिक रिसर्च इज़ अ मेजर टेबू। आपने सुना होगा कि कोई प्रोफेसर साहब थे, नाम नहीं लेना चाहिए उनका, उनके इंस्टीट्यूशन का भी, लेकिन वो ही वॉज वो अपनी यूनिवर्सिटी के हेड थे और उनको पता चला कि उनकी पीएचडी की डिग्री उन्होंने कहीं से चीटिंग की थी पीएचडी थीसिस में, तो ही वाज टू बी अरेस्टेड, वो भाग गए मुल्क से। तो इतने सीरियस इश्यूज हो जाते हैं जब आप ऑनेस्टी को कंप्लाई नहीं करते साइंटिफिक रिसर्च में। अच्छा जी, अब ये साइंटिफिक अप्रोच जो है इसमें आपको इस तरह की टर्म्स मिलेंगी जैसे साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक ओरिएंटेशन। इन सब का बेसिक आइडिया यही है कि आपको वो जो प्रिंसिपल्स हैं ना साइंटिफिक रिसर्च के, कि आप आप आपने एक बिल्कुल प्रिस्टीन और लॉजिकल तरीके से एक सवाल का जवाब निकालना है, उनको एडहेयर करना है। अब उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, लेकिन एक एक ऐसे बंदे का जो रिसर्च ओरिएंटेड है उसको हर वक्त इन एटीट्यूड्स और इन ओरिएंटेशंस का ख्याल रखना चाहिए। आप लोगों ने आई एम श्योर आप लोगों ने जर्नल आर्टिकल्स पढ़े होंगे। अब उसके अंदर एक बेसिक प्रिंसिपल है कि जब किसी बंदे का आर्टिकल आपके पास रिव्यू के लिए आता है तो उसको ब्लाइंडली रिव्यू करना चाहिए। ब्लाइंडली रिव्यू का मतलब है कि आपको पता नहीं होना चाहिए कि ये किस मुल्क से किस बंदे ने रिसर्च की है। या डबल ब्लाइंड भी इसमें होता है। डबल ब्लाइंड का मतलब होता है कि ना रिव्यू करने वाले को पता होता है कि कौन बंदा ने रिसर्च की, और ना रिसर्च करने वाले को पता होता है कि मुझे रिव्यू कौन करेगा, और उनके नाम और अंदर पेपर्स में से बहुत सारी डिटेल्स रिमूव करती जाती हैं जिनसे कोई आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो इस सेंस में जो साइंस है ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है। ये आपके आइडियाज़ को, थ्योरीज़ को, क्वेश्चंस को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाता है, एक एक लॉजिकल फ्रेमवर्क से गुजार के, ताकि आपका आइडिया जो है वो उसकी प्रैक्टिकल वैल्यू बने और वो आगे दुनिया के काम आ सके। आगे चलते हैं जी लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर की तरफ, और ये है स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस। अब मैंने आपको बताया कि रिसर्च की बेसिक अप्रोचेस दो हैं, इनको हम बहुत डिटेल में मिड टर्म के बाद पढ़ेंगे। मिड टर्म से पहले भी डिस्कस होती रहेंगी जगह जगह पे, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव अप्रोच, इनके स्टेप्स क्या होते हैं। तो क्विकली देख लेते हैं कि क्वांटिटेटिव अप्रोच है क्या। आम ज़ुबान में कहें तो जो नंबर्स जिस रिसर्च में होते हैं, इतने लोगों से ये पूछा, उनमें से इतने परसेंट ने ये जवाब दिया, इस चीज़ को हम कहते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, सिस्टमैटिक एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑब्जर्वेबल फिनोमेना वाया स्टेटिस्टिकल, मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। स्टेप क्या है इसके? पहला है अपना टॉपिक सेलेक्ट करें। दूसरा है अपने क्वेश्चंस को फोकस कर लें, यानी टॉपिक तो ब्रॉड सा था, उसमें से एग्जैक्टली क्वेश्चन निकाल लें। तीसरा है अब फैसला करें कि इस सवाल का जवाब कैसे निकलेगा। अपनी रिसर्च मेथड निकालें या अपनी स्टडी को डिज़ाइन करें। जब डिज़ाइन कर लिया तो चौथा स्टेप है कि डेटा कलेक्ट कर लें। डेटा कलेक्ट कर लिया तो पांचवा स्टेप है उसको एनालाइज कर लें। एनालाइज कर लिया तो उसमें से वैल्यूएबल आउटकम निकालें, इंटरप्रेट करें उसको, अपनी कंक्लूजन्स निकालें। और जब वो भी कर लिए तो आखिरी स्टेप है कि दूसरों को इन्फॉर्म कर लें कि मैंने ये रिसर्च की थी और ये इसकी आउटकम निकली है, इस तरीके से की थी और ये इसकी आउटकम है। इन्फॉर्म कैसे करते हैं? जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, पेपर लिख के, कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करके, थीसिस लिख के, रिपोर्ट लिख के। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं कि ये क्वांटिटेटिव रिसर्च किसी ने की तो क्या था, इन्हीं सारे स्टेप्स में उसने क्या किया। तो जब उसने टॉपिक सेलेक्ट करना था तो टॉपिक उसने लिया प्राइमिंग एन एकेडमिक परफॉर्मेंस। यानी कोई बंदा कोई चीज़ पढ़ने जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक डिग्री करने जाते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा कोर्स कर लेने से कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं? फिर उसने अपने उस टॉपिक के बारे में कोर्स कर लेने से फ़र्क पड़ता है कि नहीं? अपने क्वेश्चन को फोकस ऐसे किया कि डू स्टूडेंट्स हु आर प्राइम्ड इम्प्रूव एकेडमिकली, यानी जो पहले से कोर्स छोटा मोटा कर लेता है उसके ग्रेड्स अच्छे आते हैं। स्टडी का डिज़ाइन क्या था कि एक्सपेरिमेंट्स करने थे उसने। डेटा कैसे कलेक्ट करना था?
सोशल साइकोलॉजी के कोर्सेज़ में उसने जाके देखा कि जो बच्चे पहले से कोर्स करके आए थे उनके रिज़ल्ट्स कैसे थे, जो करके नहीं आए थे उनके रिज़ल्ट कैसे थे। एनालाइज़ कैसे किया स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से। जवाब क्या निकला कि स्टूडेंट्स हु वर प्राइम्ड स्कोर्ड हायर ऑन एग्ज़ाम्स। जो पहले से छोटा-मोटा कोर्स करके आए हुए थे डिग्री में आने से पहले, उनके नंबर ज़्यादा आए। और उसने कैसे इन्फॉर्म किया लोगों को, पब्लिश्ड इन अप्लाइड सोशल साइकोलॉजी एक जर्नल का नाम है, उसके अंदर उसने पब्लिश कर लिया। जिस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है इसी तरह क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। क्वालिटेटिव रिसर्च ऑपोजिट एक तरह से कह लें कि है क्वांटिटेटिव के, और ये वो रिसर्च है जहाँ पे नंबर्स नहीं होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें, साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन टू गैदर नॉन न्यूमेरिकल डेटा। इसके स्टेप्स क्या हैं? पहला स्टेप है एक्नॉलेज सोशल सेल्फ, यानी ये एक और तरह से सोचने का तरीका है। जो कुछ लोग होते हैं जो नंबर्स में इजी फील करते हैं, जो कहते हैं कि हाँ यहाँ पे जब ये 16 हो गया तो मेरे ख्याल में मुझे ये काम कर लेना चाहिए, वहाँ जब तक 25 नहीं होगा ये काम नहीं करना चाहिए। एक दूसरा बंदा है वो ऐसे नहीं सोचता, वो ऐसे सोचता है कि नहीं, जब जब मैं देखूंगा कि स्कूल के बच्चे जब स्कूल से निकलते हैं तो वैसे खुद ब खुद लाइन में लग जाते हैं, इसका मतलब है कि कम्युनिटी इम्प्रूव हो गई है। वो नंबर्स की तरफ नहीं जा रहा बल्कि वो बिहेवियर्स देख रहा है। एक और बंदा होगा वो शायद कहेगा नहीं, पहले ज़रा एक क्वेश्चनर बना के लोगों से पूछ लें, पहले मैं खड़ा हो जाऊं और टिक करूं, जब ज़्यादा टिक होंगे तो तब बात मानूंगा। तो ये अप्रोच ही कुछ और है। तो पहला स्टेप ये हुआ कि आप एक्नॉलेज करें कि आप एक सोशल एनिमल हैं जो शायद बहुत ज़्यादा नंबर से ड्राइव नहीं होता बल्कि बिहेवियर से ड्राइव होता है। अगला है अडॉप्ट अ पर्सपेक्टिव, यानी आप फैसला करें कि आप इसी चीज़ को कि बच्चे डिसिप्लिन्ड हैं तो उससे पता चलता है कि सोसाइटी डिसिप्लिन्ड है। इसको आप किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं? आप बच्चे के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आप टीचर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, आप एक माँ बाप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या आप जनरल सोसाइटी के मेंबर से के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, या आप एक इन्वेस्टर हैं जो इस सोसाइटी में आके कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। तो पहले एक पर्सपेक्टिव अडॉप्ट करें, फिर एक स्टडी डिज़ाइन करें। जैसे पीछे स्टेप था क्वांटिटेटिव में, उसी तरह यहाँ पे फैसला करें कि स्टेप क्या होंगे रिसर्च के। डेटा कलेक्ट करें, एनालाइज करें, इंटरप्रेट करें और दूसरों को इन्फॉर्म कर दें। यानी पहले 3 स्टेप्स के अलावा ये मोर और लेस वही स्टेप्स हैं जो क्वांटिटेटिव में थे। तो इसको हम इंशाल्लाह बहुत डिटेल में आगे भी देखेंगे, लेकिन एक एग्जांपल एंड करने से पहले देख लेते हैं जिस तरह हमने क्वांटिटेटिव की देखी थी। सिलेक्ट टॉपिक, इन्होंने क्वालिटेटिव में टॉपिक सेलेक्ट किया जी कि वमन जो ख़वातीन हैं वो अमेरिका की किस स्टेट में फुल सिटीजनशिप कैसे और कितनी गेन करती हैं। सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या इनका पर्सपेक्टिव क्या था? इन्होंने पहले से इनके दिमाग में था कि वुमेन गेन सिटीजनशिप डिफरेंटली इन डिफरेंट स्टेट्स। हर स्टेट में और रूल्स होंगे सिटीजनशिप मिलने के। स्टडी का डिज़ाइन क्या था कि ये स्टेट के आर्काइव्स देखेंगे, यानी उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे जाके, लोकल न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, मैगज़ीन्स पढ़ेंगे और लीगल और पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस क्या था? एनालिसिस ऑफ व्हेन एंड हाउ वुमेन गेन्ड सिटीजनशिप इन ईच स्टेट, यानी ये मुख्तलिफ फिर लोगों के इंटरव्यूज़ करके डिटेल डिस्कशन करेंगे। कोई न्यूमेरिकल डेटा नहीं होगा, सिर्फ उनके एक्सपीरियंसेस डिस्कस करेंगे और हर स्टेट के अलग अलग होंगे। फिर उस डेटा को इंटरप्रेट करेंगे। अब ये क्वालिटेटिव में इंटरप्रेट जो है वो ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर वगैरह पे नहीं होता है। इसमें आप क्लस्टरिंग शायद किसी हद तक कर सकते हैं कि ये स्टेट और वो स्टेट तकरीबन एक तरह की थी, ये डिफरेंट इससे है, लेकिन नंबर्स नहीं होंगे बीच में। और आखिर में फिर आप किसी जर्नल में इसको पब्लिश कर देंगे। अब आई एम श्योर आपके जहन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये तो बड़ी ही सब्जेक्टिव फिर रिसर्च होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्वालिटेटिव रिसर्च जो है बहुत सब्जेक्टिव होती है और आप एक जगह की रिसर्च को नहीं रेप्लिकेट कर सकते दूसरी पे। हो सकता है हो भी, लेकिन इन ऑल लाइकलीहुड नहीं होगी। बहुत सारे कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स होंगे जो उसको डिसाइड करेंगे। तो बड़ी बड़ी फिर कह लें कि वो फैक्टर्स क्या हैं जो डिफ़ाइन करती हैं क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव को। क्वांटिटेटिव के बड़े बड़े फैक्टर्स हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होती है
ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि आप नंबर्स को या किसी ऐसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं जो बड़ी क्लियरली आप भी देखेंगे तो आपको वही बात समझ आएगी, और कोई और भी देखेगा तो उसको वही बात समझ आएगी। कोई नंबर्स होंगे, कोई 100 गाड़ियाँ गुजर रही होंगी, कोई 25 मरीज आ रहे होंगे, हर कोई यही समझेगा। यानी आप ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स मेजर कर रहे होंगे। दूसरा है फोकस ऑन वेरिएबल्स, यानी आप देख रहे होंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, और फिर वो जो इंडिपेंडेंट होंगे आप उनको मेजर कर रहे होंगे, कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे जा रहा है, ताकि मैं देख सकूं कि फिर उससे डिपेंडेंट कितना चेंज हो रहा है। फिर आपका फोकस होता है रिलायबिलिटी के ऊपर। रिलायबिलिटी का मतलब कि जो तरीका इख्तियार किया गया सवाल का जवाब निकालने का, वो कितना वो कितना कह लें फूल प्रूफ था, रिलायबल था। यानी जो भी सुनेगा तो कहेगा हाँ हाँ ये बिल्कुल ठीक तरीका है, मैं तुमसे एग्री करता हूँ। अगली चीज़ है सेपरेशन बिटवीन थ्योरी एंड डेटा। यानी आप अज्यूम नहीं करते कि चीज़ें वैसी ही होंगी जैसे थ्योरी कह रही है, बल्कि दोनों को अलग रखते हैं, डेटा को अलग एनालाइज करते हैं, थ्योरी को अलग रखते हैं, और आखिर में फिर जाके उनको कंपेयर कर लेते हैं। फिर इसकी इसकी प्रॉपर्टी है कि जनरलाइजेबल है। यानी आपने अगर यहाँ पे रिसर्च कर ली तो आप, यानी इस्लामाबाद में कर ली क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो प्रोबेबली वो लाहौर के लिए भी काफ़ी हद तक वैलिड होगी। अगला इसका प्रॉपर्टी है कि इसमें सैम्पल साइज बहुत ज़्यादा होता है, एन लार्ज होता है, बहुत बड़ा सैम्पल लेना पड़ता है आपको, या इसकी पॉपुलेशंस भी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं एक और तरह से कह लें तो। और आखिरी, आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, मैथमेटिकल टूल्स इस्तेमाल करते हैं इसको एनालाइज करने के लिए। अब क्वालिटेटिव जो अप्रोच है वो इससे डिफरेंट है। एक एक में अगर आप कंपेयर करें तो क्वालिटेटिव जो है उसके ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स मेजर करने के बजाय उसका फोकस होता है कल्चरल मीनिंग्स पे। यानी बजाय इसके कि मैं कोई नंबर्स ढूंढूं या मैं कोई ऐसी चीज़ मेजर करूं जिससे सब एग्री कर रहे हो, मैं एक ऐसी चीज़ को देखूंगा जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में कोई मीनिंग रखती हो। यानी ये आज यहाँ से 100 गाड़ियाँ गुजर गई या 150 गाड़ियाँ गुजर गई, क्या फ़र्क पड़ता है? मैं ज़रा कॉन्टेक्स्ट देखूं कि वो जो गाड़ियाँ जा रही थी वो तेज़ जा रही थी, आहिस्ता जा रही थी, उनके अंदर लोग खुश थे, परेशान थे, मोबाइल इस्तेमाल कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, इस तरह की चीज़ें। यानी आप एक कल्चरल मीनिंग निकालें उसी चीज़ से जिससे प्रॉबेबली क्वांटिटेटिव वाला कोई न्यूमेरिकल मीनिंग निकालने की कोशिश कर रहा था। वहाँ पे आप कर रहे थे वेरिएबल्स पे फोकस, यहाँ पे इवेंट्स पे फोकस करते हैं। यानी आपने उसके पीछे वेरिएबल्स नहीं बनाए होते, बल्कि एक एक इवेंट को एनालाइज कर रहे होते हैं कि मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर गाड़ी आई जिसमें इस कपड़े पहने हुए बंदी जो थी वो इस तरह का उसका फेस का एक्सप्रेशन था और वो इतनी तेज़ी से गुजर गई। यानी वही चीज़ जिसको जो पॉजिटिविस्टिक बंदा है वो किसी और तरह से देख रहा था, आप किसी और तरह से देख रहे हैं। फिर वहाँ पे आप रिलायबिलिटी पे फोकस कर रहे थे, की फैक्टर था वो, यहाँ पे ऑथेंटिसिटी की फैक्टर है। यानी वहाँ पे आप देख रहे थे कि आपने मेथड बहुत अच्छा फॉलो किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नहीं मैंने कोई इसमें गलत बात नहीं की, कोई झूठ नहीं बोला, कोई गलत चीज़ ऑब्जर्व नहीं की, जो जेन्युइन ऑब्जर्वेशन थी उसी को अपने पर्सपेक्टिव से आपको बयान कर दिया। वहाँ पे थ्योरी और डेटा अलग अलग थे, यहाँ पे आप शुरू ही थ्योरी से करते हैं, थ्योरी को पहले समझने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेट करते हैं, क्योंकि थ्योरी बहरहाल बेसिकली बड़ी स्ट्रांग होती है और डेटा क्वालिटेटिव रिसर्चेज में मोस्टली बहुत उसको कंफर्म करता है या उसके करीब करता है, क्योंकि कल्चरल चेंजेस आते आते सालों और सदियों लग जाते हैं। फिर वहाँ पे आपके पास था कि आप जनरलाइजेबल थी आपकी रिसर्च, यानी आप एक जगह पे की तो दूसरी जगह पे भी उसको अप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे सिचुएशनल है, यानी आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन में हुई है तो इसको जनरलाइज नहीं किया जा सकता। इसी तरह वहाँ पे सैम्पल साइज बहुत बड़ा था, यहाँ पे सैम्पल साइज बहुत छोटा है। वहाँ पे आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे थे, यहाँ पे थीमेटिक एनालिसिस करते हैं। ये थी बड़े बड़े डिफरेंसेस जी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च के। अभी हमारी आखिरी स्लाइड है जिसपे हम एक टिपिकल रिसर्च का स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि रिसर्च में किन किन स्टेप से गुजरते हैं। इसको हम पहले भी 2-3 बार देख चुके हैं, उसी को रीइंफोर्स कर रहे हैं। आप सबसे पहले करते क्या हैं कि आप पहले अपना प्रॉब्लम एरिया डिफाइन करते हैं कि मैंने किस एरिया में रिसर्च करनी है। फिर आप क्या करते हैं कि उसका थियोरेटिकल बैकग्राउंड
समझते हैं, यानी लिटरेचर समझते हैं उसका कि थ्योरी इसके बारे में क्या कहती है। फिर आप अपना प्रपोज़ल लिखते हैं, साथ-साथ आप जो है रिसर्च मेथड्स को भी देख रहे होते हैं कि मेरे इस सवाल का जवाब किस रिसर्च मेथड से अच्छा निकलेगा। साथ-साथ एथिक्स को भी देख रहे होते हैं कि मैं जब रिसर्च करूँगा या करूँगी तो किन एथिकल इश्यूज़ का मैंने ख़्याल रखना है। और फिर वहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आपको अप्रूवल चाहिए रिसर्च करने के लिए, तो आप अप्रूवल लेते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं रिसर्च। वो आपकी यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, आपके सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं, कोई मेडिकल बॉडी भी हो सकती है, कोई सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आपको किसका अप्रूवल चाहिए। जब आपको अप्रूवल मिल गया, फिर आप क्या करते हैं कि आप मज़ीद बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं और अपने रिसर्च प्रॉब्लम को मज़ीद रिफ़ाइन करते हैं और एक बैकग्राउंड पार्ट लिखते हैं रिसर्च का। साथ-साथ देखते हैं कि डेटा कलेक्शन के कौन से अच्छे मेथड्स हैं जो आप को इस पर्टिकुलर स्टडी में डिप्लॉय करने चाहिए। फिर आप जो है अपने रिसर्च मेथड्स को डिफेंड करते हैं, प्रूव करते हैं कि आप ठीक रिसर्च मेथड यूज़ करते हुए आगे चल रहे हैं, और साथ-साथ डेटा कलेक्शन शुरू कर देते हैं और बताते हैं कि आपके क्या रिज़ल्ट निकले डेटा कलेक्शन करने के बाद। फिर उन रिज़ल्ट्स को डिसेमिनेट करते हैं एनालाइज़ करने के बाद पूरी दुनिया को, और बताते हैं कि अब फ्यूचर रिसर्च किस एरिया में होनी चाहिए। और फाइनली आप क्या करते हैं कि उसी फ्यूचर एक कोई और रिसर्चर जो है आपकी ही पब्लिकेशन से को रिव्यू करता है और देखता है कि उसको किस एरिया में रिसर्च करनी है। तो इस तरह एक फीडबैक लूप कंप्लीट हो रहा है। अब इनमें से हमारा सारा जो ये सब्जेक्ट है जिसको हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे, वो कह लें कि इसी डायग्राम की एक्सप्लोरेशन है, या कह लें इसकी एक्सपेंशन है। हम इसी में से एक-एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर टुडे। ये सेकंड पार्ट जो अभी आप सुन रहे थे या देख रहे थे। आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे, जैसे मैं आपको बताता रहता हूँ, मुझे ईमेल पे लिख सकते हैं, ग्रुप पे लिख सकते हैं, किसी भी तरीके से जो भी आपको कम्युनिकेट करने के लिए ईज़ी है, आप मुझे लिख सकते हैं। और जो चैप्टर शुरू में मैंने मेंशन किया न्यूमन का चैप्टर 1, वो आपने पढ़ना है इन स्लाइड्स के साथ साथ। उस चैप्टर के कंटेंट्स और इस स्लाइड के कंटेंट्स जो हैं वो आपका